Tushar, you and me are in the same boat. धनंजय इज ऑल्सो देयर. चलो तीन हुए. बाकी सबको लगता है होम्योपैथी बेटर है. हम मेरे को ही कभी कभी नहीं लगता यार. आई सल्यूट टू ऑल द कॉन्फिडेंस दैट यू हैव. लुक, अभी कुछ भी बोलते हो, मे बी यू हैव सीन वंडरफुल रिजल्ट्स एंड मे बी यू हैव good teachers who have instilled such confidence in you. But when you start practicing, I'm saying when you start practicing, अभी इंटर्नशिप में है बहुत सारे लोग, कुछ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, कुछ आर जस्ट प्रैक्टिसिंग. You will find a lot of challenges in your clinical practice. There will be times when you will struggle to give relief to an asthma patient, और उस अस्थमा पेशेंट को वो इनहेलर लेके ही रिलीफ आएगा. There will be times when you will not be able to stop an allergic reaction in urticaria, और वो कुछ ना कुछ एंटी एलर्जिक खाएगा पेशेंट. ऐसा टाइम आएगा when the patient is depressed. You want to treat the depression, but the patient would end up taking an anti-anxiety or antidepressant drug. And there will be a lot of cases जहां पर आपको लगेगा कि किडनी स्टोन ही तो है, निकाल सकता हूं, बट वो निकलेगा नहीं स्टोन, और वो पेशेंट को सर्जरी करानी पड़ेगी. सो क्या होगा, वो जब टाइम आएंगे ना, ऐसे जब मौके आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं थोड़ा सा टूटेगा, और कभी आपको लगेगा कि यार वो सिस्टम बेटर है. एंड somewhere homeopaths today don't have enough confidence in our system. That is one of the reasons that a large percentage of homeopaths, after completing their graduation, end up not practicing homeopathy. The problem is not with the system of medicine that we have. The problem is in the kind of education and training that is being provided to most homeopathy students in most homeopathic colleges in India. हमको फर्स्ट ईयर से ये तो सिखाया जाता है होम्योपैथी क्योर्स एलोपैथी सप्रेसेस, दैट होम्योपैथी कैन ब्रिंग अबाउट रेडिकल क्योर्स, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट that most homeopathy students never get to see one single radical cure during their graduation. They might go to seminars. The very few who are driven, who are willing to spend more money, they might join an academy. They might join, they start following somebody in their private clinic. They might attend some webinars or courses, online courses. बट हकीकत यह है कि कॉलेज के 5 साल में तो आपने एक भी रेडिकल क्योर नहीं देखा हुआ होता. अभी जिसने रेडिकल क्योर देखा नहीं, वो रेडिकल क्योर करेगा कैसे? तो should I blame those students for not doing what they are supposed to do? I don't blame those students. We have to improve our education system. But then वो कहते हैं ना कि बदलाव लाने के लिए एक एक पर्सन इंपॉर्टेंट है. So you are going to be those messengers of change for me and for the academy also here. We are training people like you so that you become those messengers of change. You are the drivers of change. You can inspire. We can inspire 100 people. You can inspire 10,000 people together. So that is how homeopathy is going to survive and grow. So this is the whole idea, to instill more confidence in you and in all the homeopaths. It's not about results, but what needs to be understood कि हमको लगता है कि मेडिसिन बहुत चेंज हो गई हैनेमन के टाइम से. हैनेमन के टाइम से मॉडर्न मेडिसिन बहुत चेंज हो गई, बट द प्रॉब्लम इज, यस चेंज तो हो गई है, लुक्स में, अपीयरेंस में इट हैज चेंज ड्रामेटिकली, बट ऑन द ग्राउंड हैव द रिजल्ट्स चेंज्ड? Unfortunately, no. Unfortunately, no. आप में से ज्यादातर को ये भी नहीं पता होगा कि why modern medicine became such a dominant school of thought. Let me give you a little bit of history there. अगर आप हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी पढ़ोगे यूएस में, सो ईयर 1900 के आसपास यूएस में लगभग 28 मेडिकल कॉलेजेस थे विच वर फुल टाइम होम्योपैथी कॉलेजेस. और यूएस में 3 सिस्टम ऑफ मेडिसिन प्रैक्टिस होते थे, एलोपैथी, होम्योपैथी और कायरो प्रैक्टिशनर्स. तीनों इंडिपेंडेंट मेडिकल सिस्टम्स थे.
तीनों की 5-5 साल की डिग्री, 6-6 साल की डिग्री कोर्स होते थे। और तीनों में से सबसे पॉपुलर था होम्योपैथी। कैंट का देश था, सबसे ज्यादा होम्योपैथी पॉपुलर थी अ, उस जमाने में। फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल्स थे, मतलब जैसे आज एलोपैथी के हॉस्पिटल्स होते हैं बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस के साथ एसोसिएटेड, वैसे हॉस्पिटल्स थे यूएस में उस वक्त कॉलेजेस के साथ एसोसिएटेड। यूरोप में भी ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स थे। फिर क्या हुआ, वहां पे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है रॉकफेलर। और रॉकफेलर जो थे वो तेल का काम करते थे, ऑयल। ऑयल की जो बाय प्रोडक्ट्स होते थे उनसे बनती थी ड्रग्स एलोपैथिक। ये रॉकफेलर उस जमाने के सबसे रिच अमेरिकन में से होते थे। और इनफैक्ट रॉकफेलर फैमिली आज भी अमेरिका की सबसे रिच फैमिलीज में से है। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बंदे को लगाया कि भैया तुम पूरे अ, अमेरिका में घूमो। उस जमाने में कार्स तो होती नहीं थी, सड़कें भी नहीं होती थी। घोड़े पे जाओ, पूरे अमेरिका का चक्कर लगाओ, उन मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट लगाओ जो कि ड्रग्स बेचते हैं, ड्रग्स देते हैं मरीजों को, जो कि डिराइव होती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। ऑब्वियसली एलोपैथिक हॉस्पिटल्स होम्योपैथी वाले तो करते नहीं थे, कायरो प्रैक्टिशनर्स भी नहीं करते थे। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने, वो बंदा गया 5 साल तक पूरे अमेरिका घूमता रहा, उसने पूरे उन कॉलेजेस की लिस्ट बनाई जो कि एलोपैथी प्रैक्टिस करते थे। अब रॉकफेलर ने कहा कि यार हमको चाहते हैं कि यही कॉलेजेस आगे बढ़ें, बाकी कॉलेजेस आगे नहीं बढ़ें, क्योंकि ये जब फ्लरिश करेंगे तो हमारी तो दवाइयां एलोपैथी की बिकेंगी जो कि हम कंट्रोल करते हैं। उन दवाइयों को बनाने के लिए जो रॉ प्रोडक्ट चाहिए उनको भी हम कंट्रोल करते हैं। सो ये यहां से शुरू हुई पैसे की पॉलिटिक्स। और रॉकफेलर ने अपनी अ, एक ट्रस्ट के थ्रू इन मेडिकल कॉलेजेस को फंड करना शुरू किया। मिलियंस ऑफ रुपीस, डॉलर्स इन दैट टाइम। ह्यूज मनी वाज गिवन टू दीज एलोपैथिक हॉस्पिटल्स एंड कॉलेजेस विच वर एक्चुअली स्ट्रगलिंग, जो सेकंड ईयर पे थे। उनको इतना पैसा दिया गया, इतनी रिसर्च का पैसा दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा दिया गया कि उनके कॉलेजेस बढ़ते गए, उनके हॉस्पिटल्स बढ़ते गए, उनका शोशेबाजी बढ़ती गई। It became glamorous. Being an allopathic doctor was prestigious. It became glamorous. It had a lot of money. It had a lot of infrastructure. And then they did something more nasty. What they did was, वहां पर सारा ट्रीटमेंट जो था वो इंश्योरेंस कंपनीज ने कंट्रोल कर लिया। मेडिकल हेल्थ का जितना भी ट्रीटमेंट था वो सब इंश्योरेंस कंपनीज ने, कि अगर आपको कोई ट्रीटमेंट लेना है तो उससे पहले आपको हेल्थ इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, और जो भी ट्रीटमेंट होगा वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का पैसा, उसको पैसा देगी आपको, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस